Hello my dear student of standard 8, and today we are going to discuss chapter number 5, that is natural disaster question answer. Okay, so without wasting any further time, let's begin. So here is your first question. Your question is, can the disaster mentioned in this unit be called the geographical event? Why? So friends, remember, whenever the question will start with can, you are supposed to answer either yes or no. Okay, in simple language if I say कैन, इसमें ऐसा पूछा गया है कि जो डिजास्टर हमको बताई गई है क्या वो जोग्राफिकल इवेंट है, देन द आंसर इज यस. ओके, सो आई एम रीडिंग द आंसर फॉर यू. Yes, the disaster mentioned in this unit be called geographical events. Earthquake, volcano, tsunami, flood, drought, landslide, etc. are disasters which occur on the surface of the earth. So this can be called geographical event. जो लास्ट में जो वाई लगाया था इसलिए हम लोगों को ये सब बताना पड़ा कि ये सारी geographical events होती हैं. ओके, so let us move to the second question. How can you get information about disaster from government? So अगर आपको कोई गवर्नमेंट से कोई अपडेट लेना है, so here are the some information that you are supposed to be contact. Information regarding the disaster and their management can be collected from the following address by post or by email. So remember, Gujarat State Disaster Management Authority. Okay, block number 11, 5th floor, Udyog Bhavan, Gandhinagar. Pin code is given 382017. Telephone number is also given, +91 is India's code 7923259220, and fax is also given, fax number. Okay, and email info@gsdma.org. So this GSDMA means Gujarat State Disaster Management Authority. Okay friends, question number 2, you don't expect such kind of question in your examination. Okay, this is only for your information, but question number 1 you can expect, that is for the 2 marks. Third question, what are the advantages of the living in a volcanic region? How? Suppose you are staying in an area where there are lots of volcanic mountains are there. So is there any benefit? And then if there is any benefit, then how? Okay, the advantage of the living in a volcanic region are as under. Number 1, the fertility of the land increases due to the lava. So due to the magma and lava, when it cool down, it increases the fertility of the soil, which is very good for agriculture. Point number 2, the agriculture production is very good due to the fertile land in Java and Sumatra, as it is made of lava. So countries like Java and Sumatra, they get very good production of the crops due to the lava only. Point number 3, the potassium rich soil from the volcanic residual help the farmer to obtain abundant crops production. Okay, so ड्यू टू द मोर एंड मोर लावा, आपको यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा क्रॉप का प्रोडक्शन ज़्यादा मिलता है. पॉइंट नंबर 4, now the hot water spring in the areas of volcano have germ killing property that cures skin. Now nearby such kind of volcanic area you will find hot water spring, and if you bath in that, then many of your skin diseases get cured. Now the 5th point, सी कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग इससे गर्म पानी में नहाओगे, ज़मीन में से निकलता है लाइक अ गीज़र, सो आप लोग उसमें आपकी जो स्किन की डिजीज है बहुत हद तक क्योर हो जाएंगे. पॉइंट नंबर 5, एट द लोअर डेप्थ ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ सर्टेन मिनरल्स लाइक मर्क्यूरी, टंगस्टन, tin, plating, zinc, aluminium, etc. can be obtained easily due to the volcano. So places nearby the volcanic area you will find such kinds of minerals. Point number 6, the lava that cools down inside the vent of extinct volcano turns into diamond with the passage of time. So as and when these things are like coal is there inside the earth, after lakhs of years it will turn into the diamond due to the pressure. Okay, and point number 7, a small rock throwing out
during the volcanic eruption is known as the lapilli, which have been proved to be very useful as they are mounted easily. So it's a one kind of rock, इसको lapilli बोलते हैं, जो बहुत ही काम की है. Okay, so this is a very important question and you can expect it in your exam 4 to 5 marks. So let us move to the next question. Your friend's village has been affected by flood. Suppose you have one friend and उसके गांव में flood आता है. Flood means lot of water from the river. What will you do to help him? आप हम उसकी help कैसे कर सकते हैं? Well, the first point says that I shall provide food grains, clothes, medicine, utensils for kitchen and beds etc. to him. ड्यू टू द फ्लड सब कुछ वॉश आउट हो चुका है, तो हमको उनको खाने के लिए ग्रेन्स देने चाहिए, क्लोथ देने चाहिए एंड मेडिसिन, यूटेंसिल्स, यानी उनकी मतलब हर तरीके से मदद करनी चाहिए. आई सेल अरेंज फॉर हिज स्टे, नहीं तो फ्लड में ऐसे ही परेशान होंगे तो उनके रहने की व्यवस्था करनी चाहिए. आई सेल इंस्ट्रक्ट माई फ्रेंड्स एंड विलेजर्स टू ड्रिंक ओनली बॉइल्ड वाटर. इन सच काइंड ऑफ कंडीशन यूजुअली वाटर गेट्स बॉइल्ड एंड खराब पानी पीने से लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं. So it is advisable during the rainy season that you should drink only the boiled water. Point number 4. I shall arrange to provide enough grass and drinking water for the cattle in his house. At the village place you will easily able to find many cattle. So उनके लिए भी water का and grass का arrangement करना चाहिए. With the help of friends, I shall clean up the filth deposit in his home ड्यू टू द फ्लड. तो जो भी आसपास की जो गंदगी होती है उसको हम लोग क्या करेंगे, वॉश आउट करेंगे. जितनी ज़्यादा गंदगी साफ़ होगी उतना ही हमारे लिए हाइजेनिक एटमॉस्फेयर होगा और हम लोग नॉर्मल लाइफ पे बैक कर पाएंगे. आगे चलते हैं. पॉइंट नंबर 6 पे आई शैल जॉइन अ लेबर कैंप्स टू रिपेयर द रोड डैमेज ड्यू टू द फ्लड. ड्यू टू द फ्लड समटाइम्स व्हाट हैपन कि जो हमारी जो रोड्स होती हैं वो फ्लड से डैमेज हो जाती हैं. सो जितना जल्दी हो सके अगर उसको हम रिपेयर करें तो कनेक्टिविटी के इशूज सॉल्व हो जाएंगे. एंड अच्छा है, रोड अगर जल्दी बन जाती हो तो हमारा जो मेडिसिन मंगवानी है, जो व्हीकल्स का मूवमेंट होगा वो फास्ट होगा. पॉइंट नंबर 7. सम NGO वर्क इन फ्लड अफेक्टेड एरियाज टू प्रोवाइड रिलीफ. आई शैल जॉइन सच एन इंस्टीट्यूशन. ओके, देयर आर मेनी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विच आर वर्किंग, फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ओके, आई यूज टू रिमेंबर कुछ जो पंजाब के लोग होते हैं वो वहाँ पे लंगर लगाते हैं स्पेशली जाके. ओके, सो आपको अगर इसे आप हेल्प कर सको तो बहुत अच्छी बात है. पॉइंट नंबर 8. आई शैल कॉन्ट्रीब्यूट एज मच मनी एज आई कैन टू द चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड और सम फंड रेजिंग इंस्टीट्यूट. सो ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं. PM रिलीफ फंड भी होता है, CM रिलीफ फंड यहाँ पे दे रखा है, तो आप लोग वहाँ पे जाके हेल्प आउट कर सकते हो. मगर जो फंड इंस्टीट्यूशन होता है वो ऑथेंटिक होना चाहिए. ऐसे बहुत सारे फ्रॉड केस भी आते हैं इस टाइम पे. सो लेट अस मूव टू द 5th क्वेश्चन. वेरी सिंपल वन. विच एरियाज एक्सपीरियंस लैंडस्लाइड मोर फ्रीक्वेंटली. तो लैंडस्लाइड यूजुअली कहाँ देखने को मिलती है? ऑफकोर्स माउंटेन्स पे ज़्यादा लैंडस्लाइड होती हैं. सो जब बरसात आती है या फिर अर्थक्वेक आता है तभी यूजुअली हमको लैंडस्लाइड्स हम लोग देख पाते हैं. लैंडस्लाइड अकर मोर इन द रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल. ओके, सो जहाँ पे बरसात ज़्यादा होती है एंड इन टेक्टोनिक जोन्स यूजुअली इनडायरेक्टली दे वांट टू से द अर्थक्वेक. दिस इज बिकॉज द सरफेस रॉक इज ब्रोकन ड्यू टू द हैवी रेनफॉल और ड्यू टू एन अर्थक्वेक. ओके, सो आपको ये इतना ध्यान रखना है. इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम फॉर 2 marks. एंड पॉइंट क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट एफर्ट्स शुड बी मेड टू प्रिवेंट ड्रॉट और फेमाइन अकरिंग. ओके, सो आप लोग इन सब चीज़ों को कैसे अवॉइड कर सकते हो? सिर्फ ड्रॉट एंड फेमाइन कब होता है? जब यूजुअली बरसात नहीं आती है, डेट मीन्स शॉर्टेज ऑफ वाटर. लेकिन अगर हम लोग पानी को जुडिशियसली यूज़ करें तो ये नहीं होगा. ओके, तो यहाँ पे इस आंसर में आपको ये नॉलेज मिलेगा कि ऐसी कंडीशंस को हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं. सो लेट अस बिगिन. The following efforts should be made to prevent the drought and famine. Number 1. Every year more and more trees should be planted and nurtured. सिर्फ ट्री को प्लांट करना जरूरी नहीं है, ट्री को नर्चर करना, उसका टेक केयर करना, उसको बड़ा करना, उसको रोज पानी देना भी इम्पोर्टेंट है. ओके. पॉइंट नंबर 2. प्रिवेंट एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन टू मेंटेन द ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर. जितना हो सके हमको एनवायरनमेंट को साफ रखना चाहिए, पॉल्यूशन लेवल कम करना चाहिए. पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं.
Well should be deepened and should be recharged to get water and drinking and for irrigation. तो जो वेल्स होते हैं जो ट्रेडिशनली, उसको हमको क्या करना चाहिए और गहरा करना चाहिए ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकाल सकें और उसको रिचार्ज भी करते रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, वाटर स्टोरेज टैंक एंड रिजर्वियर शुड बी बिल्ट टू स्टोर रेन वाटर एंड स्टॉर्म वाटर। तो हमको टैंक बनाने चाहिए पानी के एंड रिजर्वियर्स बनाने चाहिए, छोटे छोटे जो लेक्स होते हैं वहाँ पे हमको पानी, बरसात के पानी को स्टोर करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, वाटर शुड बी स्टोर बाय कंस्ट्रक्टिंग चेक डैम अक्रॉस द स्मॉल रिवर्स, स्ट्रीम्स और वाटर क्रिक्स। अब ये चेक डैम्स क्या होते हैं, डैम्स बहुत बड़े होते हैं लेकिन चेक डैम्स क्या होते हैं, एक छोटी सी दीवार होती है। ओके, सो ये भी मतलब डैम ही होता है बट थोड़ा लेस हाइट का होता है। इस तरह से हम लोग पानी को सेव कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, अटेम्प्ट शुड बी मेड टू स्टोर रेन वाटर एंड इंक्रीज ग्राउंड वाटर वॉल्यूम, है ना। तो हम लोग जितना जब बरसात गिरती है तो ज़मीन बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेती है और वो पानी ज़मीन के नीचे जाके स्टोर होता है। तो उससे क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर का लेवल इंक्रीज होता है। तो हमको जितना ज़्यादा अगर हम लोग अंडरग्राउंड वाटर का लेवल रखेंगे उतना हमारे लिए बेटर रहेगा। चलो पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं। लेंथ ऑफ कैनाल अटैच टू द मेन डैम शुड बी इंक्रीज। तो हमको अपने कैनाल्स का नेटवर्क इंक्रीज करना चाहिए। लेक शुड बी मेड डीपर टू स्टोर मोर रेनफॉल। ओके, सो लेक्स को भी अगर हम लोग उसकी गहराई बढ़ा दें तो वो क्या होगा, ज़्यादा पानी स्टोर कर पाएगा। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। वेल, द ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक इज नोन एज द फोकस। जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, फोकस। सेकेंड वन, द फॉरेस्ट रिसोर्सेज गेट डिप्लीटेड ड्यू टू द फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट को डेंजर किससे, फॉरेस्ट फायर से। ओके, ओफन साइक्लोन स्ट्राइक एट द कोस्टल रीजन इन इंडिया। इंडिया की बात हो रही है तो हम लोग यहाँ पे साइक्लोन लिखेंगे। वेल, सुनामी भी आ सकता है बट सुनामी इंडिया में यूजुअली फ्रीक्वेंटली आती नहीं, जबकि साइक्लोन ज़्यादा आते हैं। सो अगर आप लोग सुनामी भी लिखोगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, बट साइक्लोन यहाँ पर ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है। ओके, आई थिंक मैं 4 नंबर में अंडरलाइन करना भूल गया हूँ। ड्यू टू द लैंडस्लाइड कोंकण रेलवे गेट फ्रीक्वेंटली ऑब्स्ट्रक्टेड। सो कोंकण में आपको अंडरलाइन करना है एंड ये आपका ब्लैंक है। So friends, here we had completed our chapter. Hope so you will like it. Thank you very much and have a nice day.